Good morning, everyone. So today in the heat and mass transfer lecture series, we will study heat dissipation from a fin losing heat at the tip. So far we have studied about there are three types of fins according to the boundary conditions. So we have applied some boundary conditions to the initial rectangular fin, and we have calculated the temperature distribution curve and temperature distribution profile and heat transfer from the fin, that is Q fin. And with respect to both of the fins, that is of infinite long rod or infinite long fin, and second one was the case when heat dissipation was not taking place at the tip because it has been insulated. So far these two fins have been studied with respect to the temperature profile as well as heat transfer, right? So today we will see the third type of fin which has been given out by the boundary conditions, right? So here it is, heat dissipation from a fin. The third case is heat dissipation heat dissipation from a fin losing heat losing heat at the tip at the tip. This is the third case. This is the case number third on the basis of boundary conditions. So two cases we have already studied where we have seen the temperature profile as well as heat dissipation or heat transfer from the fin, whether it is convection or conduction. So far everything we have studied, right? Now we will see what is the third case. So third case is also called as fin without tip insulation. Without tip insulation means if the tip or end will not be insulated, then what will happen? But in second case we have studied that if tip has been insulated, what happens and what kind of boundary conditions will be applied for the calculation of temperature profile as well as heat transfer, right? So today we will see when there will be a short fin of different orientation, of different size, or of different or different shape, like triangular shape or maybe rectangular shape, maybe parabolic shape. तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होंगे और उसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि जो टोटल हीट ट्रांसफर होगा फिन से वो क्या हो रहा होगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि हीट ट्रांसफर और वेट रेशियो अगर ज़्यादा है जिसका, वो फिन हम लोग चूज करते हैं। जैसे कि पैराबोलिक केस हमने देखा था, उसके बाद ट्रायंगुलर शेप वाला देखा है, फिर रेक्टेंगुलर शेप वाला देखा है। तो ये सभी का प्रेफरेंस वाइज हम लोगों ने देखा है कि स्टेशनरी है, मूविंग बॉडी है, या किस टाइप का है, तो वो फिन हम लोग किस टाइप का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्मल कंडक्टिविटी एंड ऑन डेंसिटी बेसिस। और यहाँ पर वो चीज़ हम लोग नहीं देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे केस नंबर थर्ड, जहाँ पर केस नंबर थर्ड होता है कि फिन विदाउट टिप इंसुलेशन, या फिर इसको शॉर्ट फिन भी बोलते हैं। ये क्या है आपका शॉर्ट फिन। तो शॉर्ट फिन का दो टाइप हो गया। शॉर्ट फिन में एक हो गया जब टिप को इंसुलेट करेंगे, और एक टाइप होगा जब टिप को इंसुलेट नहीं करेंगे। तो एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जैसे आप लोगों को मैंने बताया था डायग्राम में कि अगर आपके पास कोई भी फिन है और आप टिप को इंसुलेट कर देते हैं तो वहाँ से हीट ट्रांसफर क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। कहने का मतलब जो हीट का ट्रांसफर आपका बेस से यानी टी नॉट से, ये सपोज करो आपके पास एक फिन है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना करके आपको दिखाता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास ये फिन है और इस फिन में आप लोग को मालूम है नोमेनक्लेचर जो भी बताया, नोटेशन वो आप लोग को पता है। ये इसको बेस बोलते हैं और बेस का टेम्परेचर को हम लोग टी नॉट से डिनोट करते हैं। जो बाहर का आपका टेम्परेचर होगा या एम्बियंट टेम्परेचर बोलिए, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बोलिए, जहाँ पर फिन और एम्बियंट का हीट ट्रांसफर कॉन्वेक्शन के द्वारा होता है, जिसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कुछ एच होता है, वहाँ का टेम्परेचर हम लोगों ने टी इन्फिनिटी एज्यूम किया है, राइट। So T naught is the base temperature, H is the heat transfer coefficient of the environment or the fluid medium in which it has been inserted or it has been kept. T infinity is the temperature of the ambient or environment. So here suppose this is x or x coordinate, then x will be equal to 0 at the base, right? And here it is x equal to L.
suppose this fin is of length L, then x will be equal to 0 at this point, and when x equal to 0 temperature will be T naught. ये चीज आप लोग को पता है, जहां पर x का वैल्यू 0 हुआ वहां का टेम्परेचर जो होगा उस फिन का बेस का टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, यानी जिस पे अटैच है आपका। जैसे एक न्यूमेरिकल आप लोग को मैंने दिखाया था कि 1993 IES में जो आया था, जिसमें सॉल्व किए थे, एक फर्नेस में 2 फिन लगा है, एक पार्टिकुलर लेंथ पे इतना टेम्परेचर, तो कितना लेंथ पे वो टेम्परेचर आएगा, सॉल्व किए थे। तो वो इसी टाइप से टेम्परेचर के प्रोफाइल से ही सॉल्व करते हैं। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो टेम्परेचर की वैल्यू T नॉट होगा। जब x का वैल्यू L हो रहा होगा, एट दैट टाइम व्हाट विल बी दी बाउंड्री कंडीशन। हम लोगों ने यहाँ पर, मैं दूसरा कलर चूज करता हूँ सो दैट इट विल बी मोर इजियर और कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पर हमने लास्ट केस में देखा था कि अगर ये टिप है, टिप को इंसुलेट कर देंगे, तो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर हम इसको इंसुलेट करेंगे तो जो भी हीट का ट्रांसफर होगा इस पॉइंट से इन्वायरमेंट में, वो हीट का ट्रांसफर यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब हीट आपका पासेज सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब टेम्परेचर का जो प्रोफाइल है, यानी dt अपॉन dx at x equal to L will be equal to 0, that we have studied in the case number 2. But in case number 3, when tip will not be insulated, what will happen? Temperature profile of dt upon dx will not be equal to 0. Why? Because heat is being transferred from that particular section or particular cross sectional area which has been exposed for the tip, right? ये चीज है। देखते हैं इसको हम लोग डायग्राम में। ये जो आपको मैंने ब्लैक से बनाया इसको रिमूव करते हैं, बिकॉज ये हमारा क्या है, टिप यहाँ पर इंसुलेट नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ समझ पा रहे होंगे, राइट। देखिए तो यहाँ पर सपोज करो कि आपके पास ये फिन है और ये टिप जो है यहाँ पर इंसुलेटेड नहीं है। अगर टिप इंसुलेटेड नहीं होगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग लगाना और समझना जो बात मैं बता रहा हूँ, गांठ बांध करके दिमाग में बना लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के द्वारा, राइट, क्योंकि ये आपका सॉलिड है। ये आप लोग को मैंने बताया था कि कंडक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर कब होगा, जो सॉलिड का मीडियम या तो वही होगा मटेरियल, या फिर दो सॉलिड मीडियम डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तो होगा हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के द्वारा। बट अगर मीडियम का ट्रांसपोर्ट होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच में, या सॉलिड या फ्लूइड के बीच में, तो आपका हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के द्वारा, दैट यू ऑलरेडी नो, राइट। अब देखिए यहाँ से यहाँ टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बिकॉज ये क्या होगा जी, आपका मेटल्स होंगे। बट इस पॉइंट पे थोड़ा समझना गौर से, इस वाले पॉइंट पे हीट का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ का जो हो रहा है, वो अब क्या होगा कि वो हीट टिप के द्वारा आपका बाहर में हीट का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि ये वाला जो टिप है आपका इंसुलेटेड नहीं है। अगर इंसुलेटेड नहीं होगा तो रिस्ट्रिक्ट पासेज को नहीं कर पा रहा है, यानी जो भी हीट का मूवमेंट यहाँ से इस पॉइंट पे आया है, वो हीट का मूवमेंट वहां से इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो जाएगा। कहाँ से एक्सपोज होगा? द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज द एरिया विच हैज बीन एक्सपोज्ड फॉर द इन्वायरमेंट। तो यहाँ से हीट का ट्रांसफर बाहर एक्सपोज होगा। अब आप लोग को पता है कि यहाँ पर क्या है जी, आपका जंक्शन पॉइंट है सॉलिड और फ्लूइड का। तो यहाँ से यहाँ का हीट का जो ट्रांसफर हो रहा होगा वो कॉन्वेक्शन के द्वारा होगा। यहाँ से हीट का ट्रांसफर किसके द्वारा होगा? कॉन्वेक्शन हीट का ट्रांसफर होगा। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर एक पॉइंट और कॉन्सेप्चुअल है जिसको आप समझिए गौर से। यहाँ से यहाँ हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के द्वारा, क्योंकि ये मीडियम इट सेल्फ है। बट यहाँ पर आपका जो है वो सॉलिड और लिक्विड का जंक्शन पॉइंट है, नोड पॉइंट है। तो यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा वो कन्वेक्शन के द्वारा होगा। लेकिन एनर्जी टोटल कंजर्व होगा, हीट ट्रांसफर यहाँ कंजर्व होगा, आप बोल सकते हैं। तो जो भी कंडक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो रहा होगा, वही हीट का ट्रांसफर उस पॉइंट से बाहर में कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा होगा। क्या मतलब? यानी फूरियर लॉज ऑफ हीट कंडक्शन जितना वैल्यू दे रहा होगा, उतना ही न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग के द्वारा जो कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर रेट हमें मिला है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल होगा। दैट इज द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इन केस ऑफ हीट डिसिपेशन फ्रॉम अ फिन लूजिंग हीट एट द टिप। दिस इज द third case where we are going to apply this boundary condition to solve whether what is the
टेम्परेचर प्रोफाइल और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन एंड हीट ट्रांसफर इक्वेशन, ये चीज समझना था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग को मैंने कुछ स्टेप्स बताया था सॉल्व करने का, कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, and then in that differential equation we apply boundary condition, and after applying the boundary condition we will get temperature profile, and from that particular temperature profile we get the temperature T, and putting that T into the heat transfer equation we can find the heat rate or heat transfer rate from that particular junction, whether it is Q fin of conduction or convection. This is the steps which we are going to use exclusively, right? अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो आपको दिया हुआ है कि जो कंडक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर होगा इस पॉइंट पे, यानी यहाँ तक जो कंडक्शन का हीट ट्रांसफर हो रहा होगा x इक्वल टू एल पे बाउंड्री कंडीशन पे, यही हीट का ट्रांसफर आपका कॉन्वेक्शन के द्वारा हुआ। अच्छा, तो फूरियर लॉज ऑफ हीट कंडक्शन आप लोग को पता है, माइनस के a dt अपॉन dx, और x इक्वल टू एल पे अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन, कहाँ पे, x इक्वल टू एल पे, बिकॉज जो कंडक्शन और कॉन्वेक्शन इक्वल हो रहा है वो x इक्वल टू एल पे हो रहा है। और कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कितना होता है जी, तो एच ए डेल्टा टी, आप लोग को पता है ये चीज। तो क्यू फिन बाय द कॉन्वेक्शन विल बी एच ए डेल्टा टी। एच क्या आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ए क्या हो गया, तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कौन सा एरिया, यहाँ का एरिया, ये वाला एरिया है जिसको हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, राइट। और डेल्टा टी क्या हो गया जी, तो डेल्टा टी हो गया टेम्परेचर का या डिफरेंस, कौन सा टेम्परेचर का डिफरेंस, तो आपको पता है हीट का ट्रांसफर जब हम कॉन्वेक्शन में पढ़ते हैं तो कॉन्वेक्शन का हीट का ट्रांसफर जो होता है वो सरफेस से आपका मीडियम के तरफ होता है यहाँ पे, और सरफेस का टेम्परेचर सपोज Ts है, और यही Ts को हमने T एज्यूम किया है इस पॉइंट पे, यहाँ पर ये जो Ts है वही टेम्परेचर आपका T के इक्विवेलेंट है, तो हमने T एज्यूम किया, वही टेम्परेचर ये है। और कहाँ पे हो रहा है जी, इन्वायरमेंट में हो रहा है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर T इन्फिनिटी लेते हैं, तो Ts माइनस T इन्फिनिटी will be the temperature difference which is going to cause for the convection heat transfer in the case of heat dissipation from a fin or short fin losing at the tip, right। ये सारे चीज है जो हम लोगों ने अभी तक देखा है। अब इसका जो प्रोसीजर होगा, जो हम लोग मूव करते हैं आगे और जिसका हेल्प लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या टेम्परेचर का प्रोफाइल होगा, दो ही चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक तो टेम्परेचर का प्रोफाइल यानी थीटा अपॉन थीटा नॉट, this is our prime motto or first thing which we are going to solve। सेकेंड होता है कि यहाँ से जो भी टेम्परेचर की वैल्यू आता है, थीटा मतलब t माइनस टी इन्फिनिटी, और थीटा नॉट मतलब t नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। टी मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन में, टी इन्फिनिटी इन्वायरमेंट का, टी नॉट बेस का टेम्परेचर, टी इन्फिनिटी इन्वायरमेंट का, एंड दिस विल बी सम इक्वेशन, ये इक्वेशन होगा यहाँ पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। अब अगर ये इक्वेशन मिलता है तो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे, इस जंक्शन पे मान लो हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो आपका x का वैल्यू दिया रहेगा, l जो भी लेंथ होगा उसका वो पुट करेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन में या फिर उस इक्वेशन में, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, राइट। उसके बाद टेम्परेचर मिलने के बाद Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, कहाँ पे अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू 0 पे, यानी इस पॉइंट पे, क्योंकि हीट का ट्रांसफर यहाँ से जो हो रहा होगा वही आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय लैटिस वाइब्रेशन, ये चीज आप लोग को मैंने बताया हुआ है पहले भी, राइट। तो यहाँ से ये चीज हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग के पास अगर कॉन्सेप्ट मालूम हो गया, बाउंड्री कंडीशन मालूम हो गया कि कहाँ पर क्या बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो अब वही घिसा पीटा जो स्टेप्स है जो पहले हम लोग पढ़े हैं दोनों केस में, जब इनफाइनाइट लॉन्ग फिन होगा तब, या फिर फिन व्हेन इट इज इंसुलेटेड एट द टिप, दोनों के लिए जो था वही अप्लाई करेंगे। बस वेरी कहाँ करता है जी, तो एक बाउंड्री कंडीशन वेरी करता है, वो भी एंड पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन का और कॉन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर आपका इक्वल हो गया है। यही एक बाउंड्री कंडीशन है जो यहाँ पर चेंज होने वाला है। देखते हैं आगे हम लोग। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज। मैं आप लोग को थोड़ा डिटेलिंग बता देता हूँ, बाकी चीज़ आपको करना होता है। आप लोग को पता है कि हम लोग क्या फॉलो करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ये वाला फिन है और इस फिन में ये आपका बेस का टेम्परेचर T नॉट है, ये x का वैल्यू 0 है, तो और ये x का वैल्यू L है, तो यहाँ Q कंडक्शन विल बी इक्वल टू Q कॉन्वेक्शन हुआ था। हाँ,
अब कंडक्शन और कन्वेक्शन अगर वहां इक्वल होगा तो बताइए बाउंड्री कंडीशन क्या होगा जी? देख लीजिए, बाउंड्री कंडीशन मैं लिख देता हूं, बाकी आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने एनालिसिस ऑफ फिन में बताया था, वहां पे अप्लाई करेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट, जब x का वैल्यू 0 होता है बाउंड्री कंडीशन में, तब थीटा का वैल्यू हो जाएगा t माइनस टी इन्फिनिटी। लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ पे t का वैल्यू जो होगा आपका वो t नॉट है, क्योंकि x इक्वल टू 0 यहाँ पर है और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या है जी? तो बेस टेम्परेचर के बराबर है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? t नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। और यही वाला जो t नॉट माइनस टी इन्फिनिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा नॉट। यानी जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो थीटा आपका थीटा नॉट बन जाएगा। यही है आपका बाउंड्री कंडीशन 1। अच्छा, जब हीट कंडक्शन हो रहा होगा फिन पे, जब x का वैल्यू L हो रहा होगा, तब हमने पढ़ा था कि हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम द एंड टू द सराउंडिंग, यानी कि कंडक्शन के द्वारा जो हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा वही आपका कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर होगा, दोनों इक्वल होंगे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो माइनस के AC dt अपॉन dx। ये चीज आप लोग को पता है, फूरियर लॉज ऑफ हीट कंडक्शन। कहाँ पे? तो x इक्वल टू L की बात कर रहे हैं। किसके बराबर है जी? तो इक्वल किसका है? तो कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ये हो गया कंडक्शन के द्वारा, जो अभी इक्वेशन लिखे वो ये है। अब यहाँ से क्या हो रहा होगा उसका इक्वेशन लिखते हैं, वो होगा H इंटू एरिया SU इंटू टी माइनस टी इन्फिनिटी। ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो T क्या हो गया? तो यहाँ का टेम्परेचर T। टी इन्फिनिटी क्या हुआ? एम्बियंट टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। H क्या हुआ? हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। एक चीज थोड़ा सा यहाँ समझना बात को, कि अब एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, थोड़ा समझिएगा गौर से। ये वाला जो सेक्शन है, अगर कंडक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर इतना हो रहा है तो यही वाला एरिया पे हो रहा है ना। ये जो लाइन ये बनाया हुआ है यहाँ पे, यही वाले एरिया पे हो रहा है ना। तो कंडक्शन के द्वारा इतना ही एरिया एक्सपोज होगा, कॉन्वेक्शन के द्वारा भी तो यही वाला एरिया एक्सपोज है। इसका मतलब जो एरिया एक्सपोज कंडक्शन हीट ट्रांसफर के लिए है, जो उत्तरदायित्व है कंडक्शन के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल है आपका कॉन्वेक्शन के लिए। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर जी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल विल बी इक्वल टू ए ऑफ एस यू। तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब ये वैल्यू कैंसिल आउट होगा तो इसको हम लोग देखते हैं कि और क्या होता है। जब ये कैंसिल आउट हुआ तो आप इसको एक स्टेप आगे हम लोग लेकर के चल सकते हैं। इस टाइप का कुछ किए नहीं है, डी टी अपॉन डी एक्स था वही चीज, ये आपका कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल होगा तो ये माइनस ऑफ एच, ये माइनस इधर आएगा तो बन जाएगा वैल्यू माइनस ऑफ एच। ये वाला जो ये t माइनस टी इन्फिनिटी है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं, तो थीटा हो गया अपॉन ये वाला k जो था वो आ गया डिनोमिनेटर यहाँ। कब? जब x इक्वल टू एल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अपने जहन में ये बात उतार लीजिए बाउंड्री कंडीशन। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो आप लोग को मालूम है ऑलरेडी कि C1 प्लस C2 इक्वल टू थीटा नॉट होता है। कहाँ से जी? एनालिसिस ऑफ फिन में आप लोग को मालूम है ना ये चीज। अब यहाँ पर C1 प्लस C2 इक्वल टू थीटा नॉट, और जब हम फिन व्हेन इट वाज इंसुलेटेड एट द टिप, उसके लिए एक स्टेप आया था ये वाला, यही सॉल्व किए थे यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन 1 के द्वारा। तो बाउंड्री कंडीशन 1 यहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ है, तो हमने सेम चीज लिखा है, t माइनस टी इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस ऑफ mx। राइट, ये दो चीज है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से अब काम होता है आपका, क्योंकि अब ये मैथमेटिक्स हो गया है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का काम आपका होता है, वो मैं नहीं करता हूँ। आप लोग को पता है ये बात। तो ये यूज करेंगे, दोनों का अप्लाई करके जो वैल्यू यहाँ पर आया था वो चीज यहाँ पर रखे हैं हम लोग, दोनों को यूज किया, आगे बढ़ेंगे। ये सारे कैलकुलेशन का पार्ट है, ये कैलकुलेशन आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप लोगों को खुद से करना है, मेहनत करना है आपको खुद से, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा यही है कॉन्सेप्ट, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करके दूंगा जी। अब इसको सॉल्व करते जाना, आगे तक सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आपका आगे बढ़ेगा, देख लेना। हाँ, लेकिन हाँ यहाँ पर दो चीज आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है? तो C1 और C2,
तो आप लोग को याद है ना, जब फिन इंसुलेटेड जब था टिप पे, तो C1 का वैल्यू हम लोग सॉल्व किए थे, वो था कुछ थीटा नॉट इनटू आपका कुछ वैल्यू आया था जो आया था C1 का, वही C2 था, डिफरेंस हुआ था निगेटिव और पॉजिटिव का। यहाँ पर भी वही चीज़ है, देखिएगा ध्यान से। तो C1 का फॉर्मूला आ जाए जो बन के आता है, तो वो होगा थीटा नॉट इंटू 1 माइनस H अपॉन K इंटू M। के आपका क्या हुआ, थर्मल कंडक्टिविटी, M क्या होगा, रूट अंडर HP अपॉन KAC इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ ml डिवाइडेड बाई e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml प्लस ऑफ h अपॉन km इंटू ई टू द पावर ml। ये वाला डेरिवेशन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट स्टेप्स हम लोग देखेंगे। तो ये C1 है, ये है आपका C2, जहाँ पर आपका थीटा नॉट सब कुछ वही है, यहाँ क्या आ गया आपका माइनस में आ, क्योंकि दोनों एक दूसरे का माइनस था, आप लोग देखे हैं ये वाला वैल्यू C2 इक्वल टू थीटा नॉट माइनस C1 होता है, तो ये हो गया थीटा नॉट माइनस ये वाला C1 की वैल्यू यहाँ पुट करो। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बन करके आता है, तो वो देख लीजिए C1 C2 का, और ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो एक्सप्रेशन बनेगा आपका C2 के लिए, वो आपका C2 बन करके आ गया है जी, वही वाला है, बस वहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बना है, राइट। C1 का और C2 का दोनों चीज हमें मिल गया है। C1 C2 का जब आप इक्वेशन में पुट कर रहे होंगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में बताया था किस तरीके से हाइपरबोलिक फंक्शन आपका cos HML या sin HML के लिए e टू द पावर जो भी l इंटू m माइनस एक्स था वो वाला पुट करते हैं। सॉल्व करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपका आएगा वो ये है। मुझे इसका सॉल्व करने में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, बट हाँ मुझे इंटरेस्ट है टेम्परेचर प्रोफाइल पे। टेम्परेचर का जो इक्वेशन आएगा, मेरा और आपका इंटरेस्ट इसके ऊपर जरूर है। कैलकुलेशन पार्ट पे, सिंप्लीफिकेशन पार्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको करना है ये मैथ्स मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको HMT बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सॉल्यूशन आप करेंगे, राइट। देखिए इक्वेशन क्या बन के आया है, तो थीटा अपॉन थीटा नॉट दिस विल बी इक्वल टू t माइनस t इंफिनिटी अपॉन t नॉट माइनस t इंफिनिटी, एंड दिस विल बी इक्वल टू cos h m इंटू l माइनस x आफ्टर लेक्चर l इंटू x, ये वैल्यू प्लस ऑफ h अपॉन के m इंटू साइन h m इंटू l माइनस एक्स। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इतने बड़े फॉर्मूला देके घबराना मत, पूरे HMT में सबसे लंबा फॉर्मूला यही है, पूरे हीट एंड मास ट्रांसफर में सबसे लेंदी फॉर्मूला यही है, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो cos h ml प्लस h अपॉन के m इंटू साइन h ml, ये बन के आया। ये आया आपका टेम्परेचर का प्रोफाइल, इसी को टेम्परेचर प्रोफाइल बोलते हैं, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। यहाँ से हम लोग प्रोफाइल भी बनाते हैं, और अब आप लोग को मालूम है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हमें टेम्परेचर का कुछ इक्वेशन बन के आएगा। अब जब टेम्परेचर का इक्वेशन आ गया तो आप हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फिन बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ये हम और आप नहीं, बल्कि फूरियर जो थे आपके, वो फूरियर्स ने आपको इक्वेशन दिया है, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, माइनस के ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये आप लोग को भली भांति पता है, आप इस इक्वेशन से वाकिफ हैं, राइट। ये आया, अब इसको सॉल्व करिए। जैसे ये इक्वेशन आया है ना, यहाँ से आप टी का वैल्यू यह सब ले करके पुट करना, और पुट करने के बाद यहाँ पर इसको टी को यहाँ रखते हैं वैल्यू और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फिर से आपका एक रूल यहाँ पर बनता है, क्या बनता है जी, तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है खुद से।
वो काम मैं नहीं कर दूंगा, लेकिन मैं क्या करके बताऊंगा यहाँ पे कि इक्वेशन जो आया है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो क्यू फिन बन के आता है यहाँ। देखिए कुछ ज़्यादा का फर्क नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब 3 केस था, देखिए समझना, जब आपस में कॉरेलेट करोगे ना तीनों को तो बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस वन। केस वन केस वन के केस में हम लोग क्यू फिन, क्या हो रहा है इस पे, केस वन के केस में क्यूफिन कैलकुलेट किए थे, और ये क्यूफिन का वैल्यू जो आया था वो क्या था जी, रूट अंडर एच पी के ए सी, ये वैल्यू इंटू थीटा नॉट। जब केस टू में आए थे हम लोग, केस टू में क्या किए थे, यही इक्वेशन है, साथ में कॉस एच एम एल ये मल्टीप्लाई हो गया था हीट ट्रांसफर के लिए। क्यू फिन केस टू मतलब व्हेन फिन इज इंसुलेटेड एट द टिप। थर्ड केस है क्यू फिन जब इंसुलेटेड नहीं है टिप पे, हीट का ट्रांसफर कंडक्शन और कन्वेक्शन के इक्वल हो रहा है। एट दैट टाइम इक्वेशन क्या बन गया है, तो यही वाला इक्वेशन है। देखो ये इक्वेशन थीटा नॉट तक तो वही रहेगा, साथ में आपका जो, सॉरी ये कॉस एच एम एल नहीं था, टैन एच एम एल था शायद, देख लेना एक बार, टैन एच एम एल आई थिंक सो, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या हुआ था, तो टैन एच एम एल प्लस एच अपॉन के एम आ गया ऊपर, और नीचे में आपका एच अपॉन के एम इंटू टैन एच इंटू एम एल प्लस वन आ गया है। तो आपस में कॉरलेट करोगे ना तो फॉर्मूला आसान बन जाएगा। बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको स्टेप्स जानना है। और ये हीट जो आपका क्यूफिन की वैल्यू आया है, जो फाइनल एक्सप्रेशन है, ये वाला याद कर लीजिएगा। याद क्या करना, आसानी है, रूट अंडर एच पी केस इंटू थीटा नॉट, ये तीनों केस के लिए होता है, वहाँ टैन एच एम एल होता है, टैन एच एम एल के साथ यहाँ प्लस एच अपॉन के एम अपॉन वन प्लस एच अपॉन के एम इंटू टैन एच ऑफ एम एल। तो हाइपरबोलिक फंक्शन का साइन का, कॉस का या टैन का आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व आपको करना है। ये सॉल्व करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो होगा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दी फिन, ये चीज आपका यहाँ से बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रूपरेखा समझा देता हूँ क्वेश्चन का, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम आप करेंगे। देखिए बोलता है ए फिन 5 मिलीमीटर थिक एंड 45 मिलीमीटर लेंथ और लॉन्ग हैज इट्स बेस ऑन अ प्लेन प्लेट। ये आपका प्लेन प्लेट है, इसके ऊपर फिन को रखा गया, ये आपका फिन है, विच इज मेंटेन्ड एट 125 डिग्री सेल्सियस। ये किस पे है जी मेंटेन, तो बेस टेम्परेचर दिया है यहाँ पर टी नॉट, जो कि है 125 डिग्री सेल्सियस। एम्बिएंट टेम्परेचर इज 25, यानी टी इन्फिनिटी की बात किया है वो है 25। द कंडक्टिविटी ऑफ फिन मटेरियल इज 55, इसका के दिया है आपका, एंड द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच की वैल्यू आपको दिया हुआ है। डिटरमिन टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द फिन, एंड पे टेम्परेचर क्या होगा, तो वो आपको फाइंड करना है। कैसे होगा जी, तो टेम्परेचर प्रोफाइल से होगा, टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी के लिए जो बड़ा सा इक्वेशन लिए थे वहां पर सॉल्व होगा। हाँ, लेकिन वहां पर m का वैल्यू होता है, m का वैल्यू रूट अंडर एच पी अपॉन के ए सी होता है। सॉल्व करना, पेरीमीटर आप कैलकुलेट कर लोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कैलकुलेट करोगे, पुट करना, वैल्यू आ जाएगा। टेम्परेचर एट द मिडिल ऑफ द फिन, कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू अगर l है तो l/2 पे पुट करना है। हीट डिसिपेटेड बाय द फिन पर मीटर लेंथ, यानी q अपॉन लेंथ, q अपॉन l कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब जो क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी सबसे लास्ट में जो कैलकुलेट किए थे ना, q का वैल्यू रूट अंडर एच पी के ए सी इंटू थीटा नॉट इंटू टैन एच एम एल प्लस के ऑफ एच पी या एच अपॉन पी के, कुछ ऐसा कुछ था, देख लेना वो इक्वेशन, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, बट आपको याद करना है, ये चीज है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा उसी मेथड से, जैसे आपको तरीका बताए वही सारा मेथड है, बहुत आसान है, बट हाँ स्टेप्स तो याद होना चाहिए, स्टेप्स तो आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो सॉल्व होगा। तो ये इक्वेशन बन के आता है, आप लोग को मालूम है, थीटा अपॉन थीटा नॉट इक्वल टू ये फॉर्मूला बना, ये सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद क्या होता है, हम इस फॉर्मूले को 1 अपॉन इतना कर दिए। क्यों किए हैं जी, क्योंकि ऊपर का वैल्यू आपका काफ़ी कम होता है ये वाला, इसीलिए हम लोग ये लिए हैं, राइट। कहने का मतलब ये वाली वैल्यू को इग्नोर मारो, तो ये वैल्यू अपॉन ये बनेगा। तो अब m का वैल्यू एच पी अपॉन के ए सी,
H मालूम है, P आपको पेरीमीटर पता है 2 इंटू बी प्लस वाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना। लास्ट क्वेश्चन में भी आपको करवाए थे, अगर एक डायमेंशन अगर काफ़ी कम होगा, वाई जो आपका थिकनेस है वो काफ़ी कम है बी के तुलना में, तो हम लोग इसको इग्नोर मार देते हैं, किसको, वाई को, और बी को रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किए आया। अब एम एल यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। स्टेप्स वही है, सॉल्व आपको करना है। ये काम आज का है आप लोग का। इसको सॉल्व करके मुझे आप पीडीएफ बना के भेजेंगे। उसके बाद टेम्परेचर मिडिल सेक्शन पे, तो L इक्वल टू L/2 हो गया। मिडिल सेक्शन पे L की वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा एज इट इज जिसे हुआ है। यहाँ पर x इक्वल टू L/2 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हम फिन की बात कर रहे हैं कहाँ पर जी, मिडिल सेक्शन। यहाँ पे x इक्वल टू L/2, अगर ये टोटल लेंथ L है तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल होगा। जहाँ पर x है ये वाला वैल्यू, यहाँ L/2 पुट कर दो। जहाँ पर x है यहाँ L/2 होगा। पुट करना, सॉल्व करना, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब हीट ट्रांसफर पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना था, ये फॉर्मूला है, आप लोगों को पता है। फॉर्मूले में पुट करना सारे कुछ वैल्यू, तो ये आएगा।